Okay, good evening to all. We are continuing with this lecture number 18 of design of steel structure. So in the last class, we have studied about the lug angle in tension member और एक lug angle का numerical हमने solve किया था, in which that question number of bolt which are coming, that is 8 or 9 something, and available length of gusset plate is lesser to accommodate that number of bolt, number 8. So we have to limit that length, and we have to limit that length of connection. So with respect to that, we have provided the some, you know, extra short angle with the main angle to the gusset plate, that is the lug angle. And as per the codal provision, we have distributed the load from gusset plate to lug angle. We have increased the 20% load, and from main angle to the lug angle we have increases the 40% load. And as per that, we completed our design by calculating the number of bolts with all three condition. Means one is the main plate connected to the gusset plate, main angle connected to the gusset plate. Another is lug angle connected to the gusset plate, and third one is the main angle connected to the lug angle. So these are basically three condition. एंड कंप्रेशन मेंबर हमने स्टार्ट कर लिया था. कंप्रेशन मेंबर में हमने मोड्स ऑफ फेलियर देख लिए थे. क्रशिंग होता है, बकलिंग होता है. बकलिंग में दो देखे थे हमने, ओवरऑल बकलिंग होता है और एक आपका लोकल बकलिंग था. देन आपका टॉर्जनल बकलिंग था, है ना. कुछ एंड कंडीशंस देखी थी हमने कि डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ. ओके, सो व्हाट विल बी द एल इफेक्टिव फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन. ये सब हमने देख लिया था. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग आफ्टर दिस टू आवर डिजाइन. सो हाउ वी डिजाइन अ एक्सियल कंप्रेशन मेंबर of steel in a steel structure. So let's start, and we'll go step by step, right? So here I am representing, screen आपको share हो रही होगी, design of compression member. So what are the important factor? Important factor for design is yield stress of material. Okay, so ये कह रहे हैं कि yield stress means Fi of material is the governing factor for the strength, compressive strength, okay, of a member. Length of the member, which directly related to the slenderness ratio. तो slenderness ratio यहाँ पर जो है देखिए लिखा है lambda. It is the very important, very key factor, a significant factor which directly related to its strength, compressive strength, right? So lambda is effective length over the minimum radius of gyration. Okay, and r minimum का एक और फॉर्मूला बताया था, is equal to under root I minimum by a. So under root moment of inertia over the area will give you the minimum radius of gyration. Okay, so and third one is the imperfection factor. Imperfection factor is basically alpha, and alpha is depend upon the class of buckling, and class of buckling depend upon the dimension of the member like h by b और t f. इसको कंपेयर करना होता है फ्रॉम द IS कोड, और यहाँ से निकल के आती है क्लास A B C. फॉर दैट क्लास अल्फा इज गिवन इन द IS code, right? And alpha we will choose from there, and we'll proceed for the design for the numerical. Okay, so in this also the design is completed when the design force is greater than the external load. If it is less than the external load, then it will fail definitely. So design strength, compressive strength must be greater than the external coming load. PD is the design compressive strength here. PD equals to area into stress. Obviously, force is equal to area into stress. What is the area? This is the effective area, effective cross section area, effective sectional area. Okay, and FCD is the design compressive stress. यहाँ पे लिखा देखा FCD is the design compressive stress. So in this question, in this design,
Here we have a task to find this FCD. FCD को हमें फाइंड करना है, और FCD को जिस फॉर्मूले से फाइंड करना है ये भी IS कोड में गिवन है। जस्ट यू मस्ट नो दिस स्टेप, मीन्स कौन से स्टेप के बाद क्या आएगा, कौन सी चीज के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे। यू मस्ट नो द कनेक्शन और सीरीज फॉर दैट, राइट। सो फॉर्मूला ऑफ FCD इज FY over gamma m naught complete divided by phi plus ब्रैकेट फाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की पावर 0.5 यानी हाफ, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। और एफसीडी दूसरे तरीके से भी निकलता है, जाय, दिस इज कॉल्ड जाय एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो या तो आप दिस स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर जाय को कैलकुलेट कीजिए, ये भी आपका ग्रेड्स पे ही डिपेंड करता है स्टील के, ओके। बट द रियल मेथड इज टू फाइंड एफसीडी वैल्यू विद दिस फॉर्मूला। एंड इफ वी सी दिस फॉर्मूला एफ आई तो ठीक है 250 हो गया, गामा एम नॉट ओके 1.1 हो गया, बट ये फाई क्या है और ये लेमडा क्या है ये हमको देखना है। तो फाई का भी एक आईएस कोड में फॉर्मूला गिवन है, फाई इक्वल्स टू 0.5 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट लेमडा माइनस 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस लेमडा का स्क्वायर। तो फाई में भी लेमडा इंक्लूडेड हो गया, तो लेमडा हमको पता करना है कि क्या है। और एक और नया इसमें कांस्टेंट आ गया, फैक्टर आ गया, दैट इज अल्फा। This alpha is nothing but it is an imperfection factor, right? What is the lambda? Lambda is non-dimensional effective slenderness ratio. So it is the effective slenderness ratio, but it is non-dimensional. So its complete denotation is non-dimensional effective slenderness ratio. It is not that slenderness ratio. It is a non-dimensional different factor. So it is under root Fy over FCC. तो क्या फॉर्मूला है लैम्डा निकालने के लिए? लैम्डा निकालने के लिए है Fy ओवर FCC, ओके, विच इज इक्वल टू, इसको और अगर हम FCC को तोड़ें, FCC कुछ नहीं है, FCC आपका बकलिंग स्ट्रेस है। तो बकलिंग क्रिपलिंग फोर्स जो हमने पढ़ा था, पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था, पाई स्क्वायर ई ए ओवर लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फोर्स। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेस? स्ट्रेस को डिनोट किया है एफसीसी से, एफसीसी इज द स्ट्रेस, पाई स्क्वायर ई ओवर लैम्डा का स्क्वायर, ए इधर आ गया है ना। तो ये एफसीसी को हम रिप्लेस कर देंगे पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा के स्क्वायर से, एफ आई ऊपर रहेगा एज इट इज। सो क्या निकल के आएगा इससे? ये आएगा अंडर रूट एफ आई तो यहाँ पर है, ठीक है, पाई स्क्वायर ई नीचे भी है ना। इसके नीचे लैम्डा स्क्वायर था जो ऊपर चले गया, और लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर है एक्चुअल स्लैंडरनेस रेशियो। और दिस एक्चुअल स्लैंडरनेस रेशियो, दिस लैम्डा, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस लैम्डा एंड दिस लैम्डा, ओके। दिस इज नॉन डायमेंशनल रेशियो एंड दिस इज द एक्चुअल स्लैंडरनेस रेशियो। तो इफ आप कंफ्यूजन ना करें, इसको मैं लैम्डा डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल वाले को। लैम्डा डैश इज एल इफेक्टिव ओवर आर और के एल ओवर आर। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, के एल ओवर आर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई, है ना। तो यहाँ पे एफसीसी क्या है? यील्ड बकलिंग स्ट्रेस, ओके, E1 टू यू। अल्फा ऊपर क्या है? इम्परफेक्शन फैक्टर। दिस इम्परफेक्शन फैक्टर, दिस अल्फा इज गिवन इन द टेबल नंबर 7 ऑफ आईएस कोड, ओके, इजीली आपको मिल जाएगा। तो दिस थिंग वी विल कैलकुलेट, ओके। और अल्फा का मैंने बता दिया कि अल्फा डिपेंड होता है आपका क्लास से, ओके। तो क्लास ऑफ आपका वो क्या है ना, बकलिंग क्लास क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो वो हम अभी देखते हैं, न्यूमेरिकल में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। Okay, another way is to find stress reduction factor, this J, and this J value is given in the table number 8. Okay, this is also given in the table number 8. तो ये जाए वाला रहने देते हैं, आप ये बेसिक से कैलकुलेट करेंगे। ओके, दिस इज द पेज नंबर 35 पे आपको छोटी सी टेबल गिवन है इम्परफेक्शन फैक्टर के लिए। इसमें देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास गिवन है, बकलिंग क्लास ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है या डी क्लास है। फॉर ऑल द 4 क्लासेस अल्फा वैल्यू इज गिवन टू यू। अल्फा ए क्लास के लिए 0.21 है, बी क्लास के लिए 0.34 है, सी क्लास के लिए 0.49 है एंड डी क्लास के लिए 0.76 है। सो अलग अलग क्लास ऑफ बकलिंग के लिए अलग अलग अल्फा की वैल्यू है, अलग अलग इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। टास्क है यहाँ पर आपको क्लास फाइंड करना है, ओके, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। सो वी विल लर्न दिस बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ, ओके। So let us move to the numerical directly, so we will have a clarity. Yeah. So question is, determine the design axial load
on the column section is given to you ISMB 400. So given that the height of the column is 3.5 meter, height of the column is 3.5 meter. You can say length of the column is 3.5 meter, and that is pin ended. So end condition is given to you of your column, both ended are pinned or hinged. If your ended are pinned, so L effective is nothing but if equals to L, yani K equals to 1. Okay. Also assume the Fy is equal to 250 Newton per mm square, Fu is equal to 410 Newton per mm square. E elasticity of material is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Now step 1. Step 1 is the sectional properties. Sectional properties आपको find करनी है. Why? Because आपको बकलिंग क्लास फाइंड करना है, राइट? तो बकलिंग क्लास अगर आप देखें तो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं. ये आपका कॉलम कॉलम का क्रॉस सेक्शन बेसिकली गिवन है. इसको आपको नोट करना है कि क्वेश्चन में सेक्शन क्या गिवन है. तो सेक्शन हमने नोट कर लिया, ISMB 400 गिवन है. सो फॉर दिस ISMB 400 वी विल write some data, some given data which is given in the steel table. ये डेटा गिवन नहीं है बट आपको सेक्शन गिवन है. चूंकि ISMB 400 विल गो टू द स्टील टेबल. स्टील टेबल में हम आई सेक्शन में जाएंगे, आई सेक्शन में हम ISMB मीडियम सेक्शन में जाएंगे. वहां पर हम देखेंगे ISMB 400 की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. वो प्रॉपर्टीज हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज आर, H इज द 400 mm. H मतलब होता है ये जो आई सेक्शन है, ये कॉलम लंबा है ना. इस क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन इज आई सेक्शन. आई सेक्शन की जो ये हाइट है, दिस इज द 400 mm. ओके. डिनोशन इसका इस तरह से होता है, ISMB 400 मतलब डेप्थ इज 400. TF इज 16 mm. सो थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये इन्होंने दी है 16 mm. TW इज इक्वल टू 8.9 mm. तो थिकनेस ऑफ वेब यानी ये जो आपको दिया है 8.9 mm, अप्रोक्सीमेटली 9 mm. B इज द 140 mm. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, विड्थ ऑफ दिस आई सेक्शन इज 140 mm. And area of this section, complete area of this I section is given 7846 mm square. Okay, area is given 7846 mm square. Okay, this is the area. And radius of gyration we also note for calculating the actual cylinder mesh ratio. We require this R value. So R is the radius of gyration. This radius of gyration is depend upon the axis. So radius of gyration for the y-axis is different, radius of gyration for the z-axis is different. ठीक है. तो let us suppose this is the your z-axis. Horizontal वाला आपका z-axis है, vertical वाला आपका ये y-axis है. तो इस I section को y-axis के about rotate होने में कठिनाई होगी या आसानी होगी? इस सेक्शन को y-axis के about rotate होने में आसानी होगी, क्योंकि इसका ry, इसका रेडियस ऑफ gyration जो है वो काफी कम है. इट कैन रोटेट अबाउट y axis इजीली एज कंपेयर टू इट्स z axis. z axis देखिए ये है, इसके अबाउट मतलब ये इस तरह से इसका मतलब इसके अबाउट इस तरह से इसका बेंड होना, which is bit difficult as compared to the y axis because RZZ इसका क्या है 161.5 है. So RZ is greater than RY. ठीक है, RY. ओके. सो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने सारे डेटा को नोट कर लिया. नाउ स्टेप इज टू फाइंड द अल्फा. अगला स्टेप है आपका अल्फा फाइंड करना, इम्परफेक्शन फाइंड करना है ना. इम्परफेक्शन फैक्टर फाइंड करना. फॉर अल्फा मैंने बताया था आपको क्या चाहिए, क्लास चाहिए. क्लास के लिए हम जाएंगे, विल गो टू द पेज नंबर 44. पेज नंबर 44, प्लीज नोट डाउन दीज पेजेस, will help you to solve these question in the examination. पेज नंबर 44 पे आपको गिवन है कि h by b का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, एंड दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1.2, एंड tf thickness of flange should be less than 40 mm. If it is some condition is something like this, then your buckling class along z axis is A and along y axis your buckling class will be B. If this condition
coming like this means if it is not greater than 1.2, then condition will be different. If it is not less than 40, condition will be different. Most of the time this condition will fall in this category. So as this is falling in this category, so buckling class is A for ZZ axis and buckling class for B is the YY axis. As we are getting buckling class A and B for two different axes ZZ and YY, so दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग क्या आ जाएंगे, अल्फा आ जाएंगे। भाई ए बकलिंग क्लास के लिए अलग अल्फा है 0.21, बी बकलिंग क्लास वाई वाई के अलॉन्ग अलग अल्फा है 0.34। तो दो अल्फा आ गए। अल्फा मैंने कहूँ अल्फा जेड आपका आ गया 0.21 और अल्फा वाई आपका आ गया 0.34। तो जेड जेड एक्सिस के लॉन्ग आ गया आपका अल्फा जेड 0.21 और वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका आ गया अल्फा वाई 0.34। So in this question we have to proceed for both the axes, means first we'll proceed to ZZ axis separately and then we'll proceed to YY axis separately, because we have 2 alpha. If we have 2 alpha we have 2 phi, क्योंकि phi से govern होता है अल्फा से गवर्न होता है आपका फाई, और फाई अगर अलग अलग आ रहा है तो एफसीडी भी अलग अलग आएगा, है ना। एरिया तो चूंकि कांस्टेंट है बट एफसीडी आपका दोनों में चेंज आ जाएगा। सो इफ एफसीडी इज चेंजिंग सो डिजाइन फोर्स विल आल्सो चेंज। सो वाई जेड जेड एक्सिस के लिए अलग कैलकुलेशन होगी और वाई एक्सिस के लिए अलग कैलकुलेशन होगी। तो लेट अस सी फॉर द जेड जेड एक्सिस फर्स्ट। For ZZ axis, what will be the non-dimensional slenderness ratio? The lambda z is equal to under root fi upon fcc, which is equal to fi L effective over r, यानी KL over r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर e। ठीक है, तो k यहाँ पे 1 है, L effective is equal to L है तो 3.5 मीटर। तो stresses are in Newton per mm square. So let us convert this 3.5 meter into the mm. So 3.5 into the 1000 divided by r. R is the radius of gyration. So firstly, we are calculating for ZZ axis. So the radius of gyration, what we are taking, that should be for ZZ axis only. Means radius of gyration for Z axis यानी RZ is given in the question, that is 161.5। तो यहाँ पर वही R आप रखेंगे, ठीक है, ये 161.5 रख दिया divided by pi square E. Pi square E. E is the elasticity of steel, that is constant. Maybe it will given to you in the question, maybe it will not given to you, so you should know it is constant. You can put it as 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So after putting this value, we are calculating the non-dimensional slenderness ratio lambda equals to 0.2439। लैम्डा हमारे पास आ गया, अल्फा हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि जेड जेड एक्सिस के लिए ए क्लास है ना, तो अल्फा 0.21, लैम्डा आ गया और अल्फा आ गया, तो वी विल इजीली कैलकुलेट दी फाई। फाई का फॉर्मूला ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आईएस कोड में गिवन है, फॉर्मूला वहां से देख सकते हैं ना। तो आपने फॉर्मूला वहां से पिक कर लिया, तो फाई इक्वल्स टू क्या गिवन 0.5 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट लैम्डा माइनस 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो अल्फा भी है भाई, लैम्डा भी है ना, तो इसको फाइव जेड बोल लीजिए क्योंकि हम जेड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फाइव जेड आपका इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर दी, फाइव जेड आपका आ गया 0.534। फाइव जेड की वैल्यू आ गई तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एफसीडी वैल्यू, यानी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दैट इज एफ आई अपॉन गामा एम नॉट फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 0.5। तो आपके पास एफ आई भी है, आपके पास फाइव 0.534 है, हमारे पास लैम्डा है 0.24। ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू वी आर गेटिंग एफसीडी वैल्यू इज इक्वल टू 225.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो design compressive stress is 225.2 Newton per mm square. This is for a ZZ axis. Similarly, we can calculate for the YY axis also. So it is same process you can do. Alpha is different because class is B. Alpha is 0.34 rather than 0.21. So lambda y will change, है ना? Lambda y, Fi L by R. This time we are calculating for the y axis. यहाँ पर जब हम ry पुट करेंगे, R पुट करेंगे वो ry होगा। ry कितना गिवन है 28.2 mm।
है ना। आरजेड कितना था, 161 था, तो यहाँ पर चेंज आ गया। रेस्ट थिंग आर सेम, आपका लेमडा आ गया 1.396। लैम्डा यू हैव, अल्फा यू हैव 0.34। फाइव वाई यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, वाई के लिए फाइव आपका आ गया 1.679। फाइव आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एफ सी डी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर अलोंग द वाई वाई एक्सिस आपकी आ गई। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू, एफ सी डी इज 87.06 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो हियर यू कैन सी द डिफरेंस। Design compressive stress for YY axis is coming 87.06 Newton per mm square. On another side, for ZZ axis, it is coming 16. It is coming actually one sorry 225.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए कितना डिफरेंस है ना। तो वाई वाई एक्सिस वीकर एक्सिस है एज कंपेयर टू द जेड जेड एक्सिस, राइट। सो now coming to the last step, almost last step for the calculation of design force। अच्छा, y एक्सिस के along आ रही है 87 अराउंड, है ना। z एक्सिस के along आ रही है, कितनी स्ट्रेंथ आ रही है 225 अराउंड। तो कम स्ट्रेंथ किसके along है, y एक्सिस के along है, राइट। तो y एक्सिस के साथ जब स्ट्रेंथ कम आ रही है, तो वीकर एक्सिस कौन सा हो गया आपका, y एक्सिस हो गया, राइट। तो we will calculate the design compressive force for the y axis, because y axis की strength कम है, तो y axis will fail first। So FCD will put 87, not 225, okay। कम वाला रखना है always। area given in the steel table। डिजाइन फोर्स यहाँ से आपका इजीली कैलकुलेट हो गया 683.07 किलो न्यूटन। तो 683 किलो न्यूटन का लोड ये आई सेक्शन विद दिस कंडीशन इजीली बियर कर सकता है, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। द नेक्स्ट मेथड मैंने बताया था वो जाई वाला मेथड है, तो जाई वाला भी आप कर सकते हैं, ओके। ये की क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम इज बिट थोड़ा सा टिपिकल अंडरस्टैंड करने के लिए, बट क्वेश्चन इज नॉट टफ। Determine the design axial load on the column section ISMB 400 the same. Height of the column is 6 meter here, as shown in the figure. It is effectively restrained at mid height by bracing member in the y direction, but it is free to move in the z direction. Ends of the both column are bent. तो सारी कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट वो कह रहे हैं कि कॉलम इस बार 6 मीटर लंबा है और इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं हम। एक इस तरह, ये 6 मीटर लंबा कॉलम है इस तरह से, और यहाँ से एक सेंटर में एक रिस्ट्रेन प्रोवाइड कर दिया, एक और यहाँ से बीम रन कर रहा है आई सेक्शन बिल्कुल सेंटर में। तो दिस विल बकल लाइक दिस। सो इफेक्टिव लेंथ which will come in picture is 3 meter. So for y axis you will design for 3 meter, okay। So for 3 meter we can proceed for this question, the rest thing is same। For z axis complete height 6 meter will come into the picture, okay? For y axis the height will be the 3 meter, okay। So moving to the next one, the कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिकली उन्होंने एक आई सेक्शन के ऊपर 2 प्लेट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी हैं, और after providing this plate at top and bottom of the I section, the moment of inertia has been changed, and the moment of inertia is summation of the moment of inertia for this original I section and the moment addition with the moment of inertia of these two plate, but it is at the distance of let us say h। so आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपने डेफिनेटली मैकेनिक्स में या सोम में पढ़ी होगी, पैरेलल एक्सिस theorem, okay। So by this we can calculate easily I, okay। Let us see the question। Calculate the compressive strength of the compound column, right, consisting of ISHB 250 at the rate 54.7 kg per meter। ये weight given है, as such no use। Main is ISHB 250 with a cover plate of 300 into 16 mm on each flange and have length of 4 meter। Assume the bottom of column is fixed and top is
हिंज्ड। तो कंडीशन आप यहाँ पे क्या दे रखी है कि बॉटम जो है फिक्स है और टॉप एंड जो है हिंज्ड है। तो in such case, what is the effective length of this column? Effective length, what we are taking is generally that is L by root 2. Okay. So section is something like this. Main section is this one, ISHB 250, and this यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी दिस मस्ट बी 250 mm। ऊपर एक पेड़ प्रोवाइड करी है 300 बाई 16 की, यानी इसकी जो विड्थ होगी वो 300 mm होगी और इसकी जो थिकनेस होगी पेड़ की दैट इज 16 mm। अच्छा, सिमिलर पेड़ प्रोवाइड करी है टॉप में भी और सिमिलर यहाँ पे नीचे। ओके, स्ट्रेंथ इसकी आपको बतानी है। तो ओरिजिनल सेक्शन आपको गिवन है, तो उसकी आप प्रॉपर्टीज और डेटा आप इजीली पिक कर सकते हैं। कहाँ से? स्टील टेबल से। एरिया आपको मिल गया आई जेड जेड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड जेड एक्सिस आपको मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई वाई एक्सिस आपको और मतलब ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है स्टील टेबल में। थिकनेस ऑफ फ्लैंज फॉर दिस सेक्शन इज 9.7 mm, राइट। सो बस आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आई जेड जेड फॉर प्लेट, ओके, आई जेड जेड फॉर प्लेट क्या हो जाएगा भाई? इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस AH square. Okay, so plate are two at top and bottom, so we are multiplying by 2 outside. Okay, so देखिए I plus AP y1 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 2 तो क्यों यूज कर रहे हैं? दो प्लेट है। So what is the AP? AP is the area of plate. What is the AP? Area of plate 300 into 16। y1 का स्क्वायर, what is the y1? y1 is the distance from center of this plate to the neutral axis। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? अच्छा, ये 250 mm है सेक्शन की, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? 125 हो जाएगी, और उसके सेंटर से हमको लेनी है, तो 125 प्लस 16/2। तो व्हाट इज द y1? y1 will be 125 plus 16/2। It will come 125 plus 8, it will come 133 mm, right? So this is how we can calculate the moment of inertia for the plate only, and multiplying by the 2। Okay, दो plate given है, तो this is coming 17,001.92 10 to the power 4 mm की power 4। this is coming the moment of inertia, right? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेन सेक्शन अंदर वाला प्लस प्लेट जो भी कैलकुलेट करा, दोनों का एडिशन कर देंगे। ये गिवन है, ये भी कैलकुलेट करा है, एडिशन कर दिया। टोटल आई जेड जेड सेक्शन फॉर कंपाउंड सेक्शन फॉर आई जेड जेड इज दिस मच। ओके, ये हमारा आ गया। एरिया भी आप निकाल सकते हैं, एरिया उसका आपको गिवन है किसका? मेन सेक्शन का, बट आप प्लेट का भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपने ऐड कर दिया प्लेट का, दो प्लेट का, तो टोटल एरिया भी आपका आ गया। सो वी हैव द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी हैव द टोटल एरिया। अगर इनका रेशियो ले लें और अंडर रूट कर दें, तो वी कैन गेट द आर जेड जेड वैल्यू, द रेडियस ऑफ gyration along जेड जेड एक्सिस कंबाइंड। ओके, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय द टोटल एरिया, ये आप आ गया 122.79 mm। ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना था, बिकॉज आई तो एक सेक्शन का गिवन है, ए उसी सेक्शन का गिवन है, बस प्लेट का हमें कैलकुलेट करना था। प्लेट का हमने कैलकुलेट करके ऐड ऑन कर दिया, ऐड ऑन करने के बाद हमने कंप्लीट आर जेड जेड चाहिए था हमें, है ना, राइट। फिर आप आई वाई वाई भी निकाल लोगे इजीली। आपने आई वाई वाई प्लेट का निकाल लिया, फिर आपने टोटल कर दिया, मेन आई वाई वाई में आपने टोटल कर दिया। सिमिलरली आपने जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, आपने टोटल एरिया निकाल लिया। सो इनर्शिया बाय एरिया आपने आर वाई निकाल लिया, रेडियस ऑफ gyration अबाउट द वाई वाई एक्सिस। आर वाई आपका आ गया 74, कंबाइंड का आर जेड आपका आ गया 122। तो आपने लास्ट न्यूमेरिकल में ये लेसन ले लिया, ये लर्न कर ही लिया कि जिसका आर जेड जेड ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर एक्सिस है, जिसका आर कम है वो आपका वीकर एक्सिस है, राइट। तो आर वाई वाई कम है तो यानी वाई के अबाउट पहले फेल करेगा, और जो कम है उसी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वाई वाई इज आर मिनिमम, आर मिनिमम इज 74.56 mm। ओके, कैलकुलेट कैसे किया है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। ओके, सो next step to find alpha buckling. What is the buckling class? So in the IS code, the buckling class for all kind of built up section or compound section, buckling class is C।
बिल्ट अप का मतलब होता है ओरिजिनली जो सेक्शन हमें गिवन है उससे काम नहीं चल रहा है तो हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ रहा है, या तो हमें ऊपर ऊपर नीचे प्लेट्स लगानी पड़ रही हैं, साइड में प्लेट्स लगानी पड़ रही हैं, या कुछ हमें और कनेक्शंस और ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बिल्ट अप सेक्शन और कंपाउंड सेक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल सच बिल्ट अप सेक्शन कंपाउंड सेक्शन बकलिंग क्लास इज कांस्टेंट फॉर एवरी टाइम दैट इज सी क्लास। फॉर द सी क्लास अल्फा आप इम्परफेक्शन फैक्टर वहां से ले लेंगे टेबल नंबर 7 से, दैट इज 0.49। ठीक है। लैम्डा आपको पता ही है के एल अपॉन आर है ना, कि यहाँ पे 0.8 होता है, एक साइड फिक्स है और एक साइड पिन है, तो एल इफेक्टिव इज टू 0.8 ऑफ एल। एल 4 मीटर है तो यहाँ आ गया आपको 3200 mm एल इफेक्टिव। तो एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो जिसको मैं क्या बोलता था, लैम्डा डैश बोलता था, वो आप निकाल लेंगे के एल अपन आर मिनिमम आर वाई, तो आपने निकाल लिया ये 42.92। ओके। आइदर यू कैन प्रोसीड बाय द प्रीवियस मेथड, लाइक अल्फा आ गया, लैम्डा आ गया, सब आ गया, तो फाई निकालो, फाई के बाद एफसीडी निकालो, एफसीडी के बाद पीडी निकालो। ओके। और यू कैन फाइंड दी डायरेक्ट फ्रॉम टेबल नंबर 9C शॉर्टकट। लैम्डा आपके पास है, एफ वाई ग्रेड आपके पास है, तो आपने डायरेक्टली 9C टेबल में गए सी बकलिंग क्लास के लिए, और वहां से फॉर दिस सिलेंडरनेस रेशियो फॉर दिस ग्रेड ऑफ स्टील डायरेक्टली पिक कर लिया अपना एफसीडी वैल्यू। यू कैन पिक डायरेक्टली एफसीडी वैल्यू फ्रॉम दी आईएस कोड टेबल नंबर 9C, वहां पर आपको गिवन है। ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरपोलेशन मेथड लगा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ आपको गिवन होगा, टेबल्स गिवन होंगी, राइट। यहाँ पर आपको क्या होंगे, ग्रेड्स ऑफ स्टील गिवन होंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपको क्या गिवन होंगे, यहाँ पर लैम्डा वैल्यू गिवन होंगी सिलेंडरनेस रेशियो की, तो आपको कोई वैल्यू मिली फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील, बट एग्जैक्टली वो वैल्यू उस एफ आई और उस लैम्डा पे नहीं मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं। तो इंटरपोलेशन यहाँ पे सॉल्व किया है ना, एफसीडी आपका आ गया 193.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइदर यू कैन फाइंड बाय दिस और यू कैन फाइंड बाय द कन्वेंशनल मेथड। अल्फा है, लैम्डा है, फाई निकालिए, फाई कैलकुलेट कीजिए, फाई के बाद आप एफसीडी निकालिए फॉर्मूले से, और यू कैन कैलकुलेट बाय दिस ऑल्सो। तो एफसीडी हमारा आ गया 193.62। So what will be the PD design force? You know, total area into the FCD, total area into the design compressive strength। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना डिजाइन फोर्स। तो हमारा डिजाइन फोर्स कैलकुलेट होके आ रहा है 3208.48 किलोन्यूटन, 3208 किलोन्यूटन के लगभग हमारा फोर्स आ रहा है, डिजाइन फोर्स अलोंग दी वाई वाई एक्सिस। ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन easily find for the different built up section। अगर हमको डायरेक्ट built up section गिवन है ना, कुछ प्लेट्स वगैरह आपकी इस तरह से लगी हुई हैं, तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं ना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और built up section के बारे में पढ़ेंगे, लेसिंग्स और ब्रेसिंग्स के डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो थैंक यू फॉर दिस।